Hello, everybody. Today's topic of our discussion is principles of curriculum construction. In our previous lecture, we have discussed about curriculum, its meaning, and the objective. And now we will discuss about the principles which should be keep in mind while one is constructing the curriculum. And what are those principles which have given a due importance or consideration while curriculum is being constructing, to have a look on the principles of curriculum construction. तो बहुत सारे principles हैं यहाँ पे, just like principle of child centeredness, principle of community centeredness, principle of activity centeredness, principle of variety, principle of coordination and integration, principle of conservation, principle of creativity, principle of forward looking, principle of flexibility, and principle of utility, principle of balance, principle of readiness, principle of flexibility, principle of needs, principle of totality of experiences, and principle of proper organizations. So these are various principles which should be considered while curriculum is being formulated or being constructed. The principle of proper organization, principle of totality of experiences, principle of need, principle of readiness, principle of utility, principle of balance, principle of his flexibility, principle of forward looking, principle of creativity, principle of conservation, principle of coordination and integration, principle of variety, principle of activity centeredness, principle of community centeredness, principle of child centeredness. So now we will discuss about all these principles in little detail. So what is principle of child centeredness? तो ये है, क्या है ये principle of child centeredness? Principle of child centeredness means that curriculum, it should be child centered. It should be based on child's needs, interest, capabilities, aptitude, age level, and circumstances. The child should be central figure in the scheme of curriculum construction, and due importance should be given to his psychological processes, his needs, interest, abilities, aptitude, age level, etc. to bring desirable modification in his behavior and to enable him or her to make effective adjustment in every sphere of his or her life. तो ये हुआ कि हमारा जो करिकुलम है इस तरह का होना चाहिए कि जो बच्चे की नीड और रिक्वायरमेंट को, कैपेबिलिटीज़ को, इंटरेस्ट को कैटर कर सके और उसको इतना कैपेबल बना सके कि वो कहीं पे भी इफ़ेक्टिवली एडजस्टमेंट जो है करने में कैपेबल हो सके. और इसके साथ जो नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास है, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटर्डनेस. दो the child's development and growth is a main consideration of curriculum construction, yet his social behavior is also to be suitably developed. Both individual development and social development of the child deserve equal attention. He is to live in and for the society. Therefore, the needs, desires of a learner must be in conformity with the needs and desire of the society in which he or she is to live. तो इस तरह से, जिस तरह से हम एक बच्चे की नीड्स, रिक्वायरमेंट्स को ड्यू इम्पोर्टेंस देते हैं, तो वी मस्ट have given the due importance to the needs and desires of the society, the expectation of the society, the values, attitude, and the skills that are prevailing
in community, society must be reflected in the curriculum. तो करिकुलम में जो भी कम्युनिटी के वैल्यू सिस्टम है, उसकी एटीट्यूड है, उसके स्किल्स एट्सेट्रा हैं, उनको एक ड्यू इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है. However, the society is being static, is not static, it is dynamic. So its needs and requirement are ever changing with rapid advancement and development that is taking place in all the fields. While working for the development, this factor cannot be ignored. So हमारा जो करिकुलम है, जिस तरह से हम एक बच्चे की नीड्स और रिक्वायरमेंट को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो हमारे करिकुलम में कम्युनिटी की नीड्स, उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसका वैल्यूज़, उसके एटीट्यूड, skills etc., they must be considered, they must have the due consideration should be given to them. तो यह है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटर्डनेस. और उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है हमारे पास, वो है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी सेंटर्डनेस. करिकुलम शुड सेंटर अराउंड multifarious activities of the students. It should provide well selected activities according to general interest and developmental stage of the children. बच्चों की जो developmental stages हैं, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, तो जो डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उनको कंसिडर करते हुए उनके अकॉर्डिंग और बच्चों के जनरल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक्टिविटी शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन द करिकुलम. इट शुड प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव, और कैसी होनी चाहिए एक्टिविटी, कंस्ट्रक्टिव, क्रिएटिव एंड प्रोजेक्टिव एक्टिविटी. और प्रोजेक्ट एक्टिविटी शुड बी देयर फॉर स्मॉल चिल्ड्रन. छोटे बच्चों के लिए प्ले वे एक्टिविटीज़ को एम्फेसाइज किया जाना चाहिए. और जबकि जैसे जैसे एज और जैसे जैसे डेवलपमेंटल स्टेज बढ़ रही है, वैसे वैसे एक्टिविटीज़ भी बच्चों के नीड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए. द पर्पसफुल एक्टिविटीज़ should be there, and these activities should be provided both in classroom and outside the classroom. It is through a network of activities that desired experiences can be provided, and consequently desirable behavioral changes can be brought about the children. बच्चों में डिज़ायरेबल बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए, चेंजेस के लिए एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम को एम्फेसिस किया जाना चाहिए, ताकि बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग जो प्रिंसिपल है साइकोलॉजी के, उसके अकॉर्डिंग लर्न करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड हो. क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ को अपने आप करके देखते हैं तो उसका वो हमें जल्दी एक्वायर हो जाती है, और उसका जो रिटेंशन स्पैन है इट विल बी, और वो बहुत ज़्यादा टाइम तक हमारे माइंड में रिटेन भी रहती है. सो दैट द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी सेंटर्डनेस should be keep in mind while curriculum is being constructed. और उसके साथ साथ जैसे हम बात करते हैं कि एक क्लासरूम में सभी के इंटरेस्ट जो है कॉमन नहीं होते. देयर आर वराइड इंटरेस्ट लाइज इन अ क्लासरूम. हर एक बच्चे का इंटरेस्ट दूसरे बच्चे से डिफरेंट होता है. तो नेक्स्ट प्रिंसिपल भी हमारा इस पे बेस्ड है, दैट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी. करिकुलम शुड बी ब्रॉड बेस्ड so as to accommodate the needs of varied categories of the pupils, so that they are able to take up subjects and participate in activities according to their capabilities and interest. The needs of pupils also changes from place to place. For example, the pupils in rural areas, urban areas and hilly areas will have the different needs. The needs of boys and girls, they are also different. So these considerations should be reflected in the curriculum. तो हर एक इस तरह से मीन्स हमें कह सकते हैं कि जब भी हम करिकुलम को ऑर्गेनाइज करें, कंस्ट्रक्ट करें, तो वहाँ पे
जो भी एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड किए जाएं दे शुड बी ब्रॉडर बेस्ड, देर शुड बी वराइट जो हर एक बच्चे के लाइक्स डिसलाइक्स या इन अदर वर्ड हर एक बच्चे के इंटरेस्ट को कैटर करने वाले लर्निंग एक्सपीरियंसेस शुड बी देयर. तो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी. तो वराइड एक्सपीरियंसेस शुड बी देयर इन आवर करिकुलम. और उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है हमारे पास वो है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन. Of course, the pupils are to be provided with selected experiences through various subjects and activities, but these must be well integrated. Various subjects and activities have to serve the same ultimate purpose, the achievement of aims of education. The activities and the subject should not be put in after tight compartment, but these should be integrated and well integrated so as to develop a whole child. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वहाँ पे क्या है, जो भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी हैं, जैसे हम साइंस की बात करें, फिजिकल साइंसेस की बात कर रहे हैं, तो फिजिकल साइंसेस हैज़ डिफरेंट ब्रांचेस, different subject area. तो it should be integrated with the other branches of the science because it is a part of a science. तो साइंस की बहुत सारी डिफरेंट ब्रांचेस हैं. तो जो करिकुलम फिजिकल साइंसेस में सिलेक्ट किया जाए it should be integrated with the different branches of science. Not only that different branches of science, but it must have the integration with other subjects too, like geography, like mathematics, like other subjects. और इंटीग्रेशन ये नहीं कि सब्जेक्ट के साथ ही हो, बट इट शुड बी रिलेटेड टू आर डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ टू. तो ये हुआ कि देर मस्ट बी अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल द सब्जेक्ट मैटर. द प्रिंसिपल ऑफ दैट कोऑर्डिनेशन मीन्स इट मस्ट बी प्रॉपरली वेल इंटीग्रेटेड एंड सो दैट जो भी हमारा एम है एजुकेशन का, दैट इज़ हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, इट कैन बी अचीव. तो ये था प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन. एंड आफ्टर दैट वी हैव द नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन. देखिए, इससे पहले कंजर्वेशन की जब हम बात करें तो जो मेन फंक्शन है हमारे और मेन जो एम है एजुकेशन का वो क्या है, टू प्रिजर्व एंड ट्रांसमिट आवर कल्चर हेरिटेज. अपनी कल्चर हेरिटेज को प्रिजर्व करना, इसको ट्रांसमिट करना. और दिस इज़ ए कल्चर ट्रांसमिशन प्रिजर्वेशन, इट इज़ क्वाइट असेंशियल फॉर द ह्यूमन प्रोग्रेस. तो कल्चर कंसिस्ट ऑफ, क्योंकि कल्चर में बहुत सारे कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, एटीट्यूड्स, स्किल्स, कंडक्ट्स, वैल्यूज़ एंड द नॉलेज. इसलिए इसको प्रिजर्व और ट्रांसमिट, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट करना, उसको प्रमोट करना, इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट. हाउएवर द करिकुलम, farmers must make the suitable selection of the elements of the culture, keeping in view their educational values and the developmental stages of the students. तो बच्चों की developmental stages और जो एजुकेशनल वैल्यूज़ हैं, एजुकेशनल इम्पॉर्टेंस है, उसको ध्यान में रखते हुए जो करिकुलम कंस्ट्रक्ट करने का पैनल है, कमेटी है, तो उनको ये सारे जो भी इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा, रखना है कि हमारा करिकुलम इस तरह से हो जिसमें हमारा कल्चर भी रिफ्लेक्ट हो, उसमें स्कोप हो हमारे ट्रेडिशंस, कस्टम, एटीट्यूड, स्किल, कंडक्ट्स, वैल्यू सिस्टम ऑफ आवर कल्चर शुड बी देयर. तो ये है, तो करिकुलम शुड व्हाट, द मेन फंक्शन ऑफ द करिकुलम शुड बी प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ आवर कल्चर हेरिटेज. तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन. इसके साथ नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी. प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी principle of creativity, as we know that
कल्चर जो है हमारा ये क्या करता है, इससे पहले हमने डिस्कस किया कल्चर के बारे में। तो कंजर्वेशन ऑफ कल्चर हेल्प टू सस्टेन द सोसाइटी एंड द कल्चर शुड नॉट बी सिंपली ट्रांसमिटेड बट ऑल्सो एनरिच्ड। देयर शुड बी प्रोविज़न इन करिकुलम टू डेवलप द क्रिएटिव इमेजिनेटिव जो फैकल्टी है बच्चे का, उसकी जो क्रिएटिविटी है उसको डेवलप करने का भी स्कोप उसमें होना चाहिए। एंड ताकि जो बच्चा है ही और शी बिकम्स कॉन्ट्रीब्यूटरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी। और रेमॉन्ड ने एम्फेसिस किया है द करिकुलम दैट इज सुटेड टू द नीड्स ऑफ टुडे एंड ऑफ द फ्यूचर, देयर मस्ट बी डेफिनेटली क्रिएटिव सब्जेक्ट। तो क्रिएटिविटी का होना बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है हमारा। तो इस तरह से क्या है कि हमारा जो भी करिकुलम है ये क्या है, ये बच्चे की आज की नीड्स के अकॉर्डिंग हो, उसकी फ्यूचर नीड्स के अकॉर्डिंग हो, और डेफिनेटली इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्रिएटिविटी अराउज करना होना चाहिए स्टूडेंट्स का, लर्नर का। तो यह प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी, सच कंसेप्ट मैटर, सच मटेरियल, सच एक्टिविटीज, सच दैट लर्निंग एक्सपीरियंसेस शुड बी इंक्लूड इन द करिकुलम which have scope to develop the imaginative faculty and the creativity of the learner। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी। और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वी हैव द प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग। तो प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब क्या है यहाँ पे, मीन्स जो बच्चे में एक विज़न डेवलप कर सके। एज वी नो दैट एजुकेशन जो है वो एनेबल करती है बच्चे को टू लीड अ सक्सेसफुल सोशल लाइफ। सो द करिकुलम शुड नॉट कैटर द प्रेजेंट नीड ऑफ द चाइल्ड अलोन, द नीड्स ऑफ हिज और हर फ्यूचर लाइफ शुड also be considered. The curriculum should also include the knowledge, skill, experiences, influences, etc., which will develop in a child the ability and power to make effective adjustment in the future or later life। मतलब सीधी सी बात है कि करिकुलम हमारा ऐसा होना चाहिए जो बच्चे को उसकी फ्यूचर लाइफ में इफ़ेक्टिवली अडैप्ट करने में केपेबल कर सके, उसको फ्यूचर लाइफ के लिए प्रिपेयर कर सके। इस तरह का करिकुलम जो है वो होना चाहिए। एंड इसके साथ हम बात करें तो वी हैव द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स ये कोई स्टैटिक नहीं होना चाहिए हमारा करिकुलम, करिकुलम शुड बी फ्लेक्सिबल। तो इन आवर एज rapid development are taking place in various fields, consequently the needs of society are changing. The content of the curriculum cannot be same for all the time to come. It should not be static. कैसा होना चाहिए? It must be dynamic and changeable. It should change with the changing time. So it should reflect the latest trend in the field of education and sciences, etc. तो इस तरह से हमारा जो करिकुलम है वो ऐसा होना चाहिए जो मॉडर्न जो भी ट्रेंड्स हैं, उन ट्रेंड्स, लेटेस्ट जो ट्रेंड्स हैं, मॉडर्न जो कंसेप्ट्स हैं, उनको भी रिफ्लेक्ट करे, उनको भी एक ड्यू इम्पोर्टेंस दे। तो इसीलिए इट शुड बी एवर चेंजिंग, मतलब इट शुड बी अपडेटेड टाइम टू टाइम with respect to the changes that occur in field of education and science as well। तो प्रिंसिपल जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी का कि कब जब भी ज़रूरत पड़े तो ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो है उसको चेंज किया जा सके, तो ये प्रिंसिपल को कंसिडर किया जाना चाहिए। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी के बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। तो प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस एम्फेसिस करता है कि करिकुलम जो है इट मस्ट maintain a balance between subject and activities, between direct or indirect experiences, between academic and vocational education, between compulsory and optional subject, between formal and informal education, between individual and the aims of education, etc. तो क्या है करिकुलम में इस तरह का करिकुलम होना चाहिए जो एक बैलेंस जो है, एक प्रॉपर बैलेंस जो है वो मेंटेन कर सके।
जिसमें एक्टिविटीज़ भी हों, जिसमें सब्जेक्ट जो मैटर है उसमें एक्टिविटीज़ भी हों, जिसमें डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपीरियंसेस का भी प्रोविज़न हो, जिसमें बच्चे की एकेडमिक और वोकेशनल ग्रोथ भी हो सके, जिसमें हर एक तरह के सब्जेक्ट्स हो, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी हो, और जिसमें कंपल्सरी सब्जेक्ट्स को भी ड्यू इम्पोर्टेंस दें, और जो इंडिविजुअल, सोसाइटी और जो एजुकेशन के एम्स हैं उनको भी वो फुलफिल करें। तो इस तरह से इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में बैलेंस भी प्रॉपरली बना रहे। तो हर एक लेवल पे एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन रहे, इस तरह से हमारा करिकुलम होना चाहिए। तो इसको बनाते समय वी मस्ट कीप इन व्यू द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी का मतलब क्या है? करिकुलम हमारा ऐसा होना चाहिए, नहीं कि इट शुड बी ऑन द वोकिश ही ना हो, कि हम उसी तक बुकिश नॉलेज तक ही लिमिटेड है और उसका डे टू डे लाइफ में कोई भी यूज़ नहीं है, कोई भी यूटिलिटी नहीं है। तो करिकुलम जो है वो यूजफुल होना चाहिए रादर द ऑर्नामेंटल। It should not only include the subjects that owe its place in it to the traditions, but the curriculum must have the practical utility for the students. वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, थ्योरेटिकल ही नहीं, बट उनको उस चीज़ को प्रैक्टिकली डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलनी चाहिए। सो देयर शुड बी सम प्रोविज़न फॉर टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन इन द करिकुलम, और इस तरह के कंसेप्ट हो जो हमारी डेली लाइफ में जिसका यूटिलिटी हो सके, जिनको डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में जिनका यूज़ हो। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट मैटर, इस तरह के लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो हैं वो प्रोवाइड किए जाने चाहिए। और प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी के साथ नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस। प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस मीन्स सच टाइप ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस शुड बी इंट्रोड्यूस्ड दैट डेवलप रेडीनेस अमंग द लर्नर्स। जो एक इनर इम्पल्स बच्चे को में अटेंटिवनेस, बच्चे में एक इनर इम्पल्स और बच्चे में एक इंटरेस्ट जो है डेवलप कर सके, ताकि उसमें डीप अंडरस्टैंडिंग जो है वो आ सके, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो सके। तो रेडीनेस, इस तरह के लर्निंग एक्सपीरियंसेस को इंट्रोड्यूस जो है किया जाना चाहिए। एंड द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस, तो ये एम्फेसिस करता है कि जो भी हमारा कंटेंट मैटर है इट शुड बी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज, इट शुड बी इन अ सिक्वेंशियल मैनर, इट शुड बी अरेंज्ड लॉजिकली, मीन्स इट शुड बी अरेंज्ड सिंपल टूवर्ड्स कॉम्प्लेक्स, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, नोन टू अननोन। तो एक प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनर में कंटेंट मैटर का लर्निंग एक्सपीरियंसेस का अरेंजमेंट होना ज़रूरी है, ताकि बच्चे में कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो सके और उसमें एक इंटरेस्ट डेवलप हो सके, और उसमें कोई उसकी जो भी थॉट प्रोसेसेस हैं वो प्रॉपरली जो है वो चैनलाइज हो सके, ऑर्गेनाइज हो सके। तो इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ नीड। तो प्रिंसिपल ऑफ नीड का मतलब हुआ कि शुड कैटर द नीड्स ऑफ द एवरी स्टूडेंट। हर एक, ये तो पहले भी हमने डिस्कस कर लिया कि हर एक बच्चे की नीड्स, डिमांड्स, रिक्वायरमेंट्स दूसरे बच्चे से डिफरेंट होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जो कॉन्सेप्ट है। तो करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो हर एक बच्चे की रिक्वायरमेंट्स को जो है फुलफिल कर सके। तो नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स इट मस्ट बी have given or must given that due importance while we are constructing the curriculum। और उसके साथ साथ नेक्स्ट हमारा आ जाता है दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी ऑफ द एक्सपीरियंसेस। तो टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस का मतलब है कि इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस एक्टिविटी और इंटर सब्जेक्ट मैटर शुड बी इंक्लूड। टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस का मतलब हुआ कि हमें क्या है, हमें सिर्फ बुकिश थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं, बट हमें डायरेक्ट, इनडायरेक्ट के साथ साथ वी हैव प्रोवाइडेड द डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस भी उसमें प्रोवाइड किए जाने चाहिए। और इस तरह की एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस करनी चाहिए जिसमें फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड भी हो। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन का मतलब है कि डायरेक्ट लर्निंग एक्सपीरियंसेस हम बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस की बात है कि हर एक तरह का एक्सपीरियंसेस जहाँ पे हो उस तरह से करिकुलम जो है हमारा होना चाहिए। तो अभी तक हमने डिस्कस किए बहुत सारे प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी, तो जो बच्चे को डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड कर सकें, और प्रिंसिपल ऑफ नीड में डिस्कस किया कि जो बच्चे की नीड को कैटर कर सके, और प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कि करिकुलम जो है हमारा प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज हो सीक्वेंस में, ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स प्रोसीड हो,
और उसके साथ साथ इस तरह का होना चाहिए, इस तरह की एक्टिविटीज़, इस तरह के एक्सपीरियंसेस होने चाहिए जो बच्चे में तत्परता, रेडीनेस जो है वो लेके आ सके। और करिकुलम सिर्फ बुकिश नॉलेज तक ही वो इस तरह के लर्निंग एक्सपीरियंसेस ना हो जो बुकिश नॉलेज तक ही लिमिटेड हो बट वहाँ पे स्कोप होना चाहिए उसके उस नॉलेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन का भी, ताकि बच्चा जो है उसको डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ में भी उसको यूटिलाइज कर सके। और उसके साथ साथ एक प्रॉपर बैलेंस भी मेंटेन होना चाहिए, उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपीरियंसेस हों, सब्जेक्ट के साथ साथ एक्टिविटीज़ भी हों, कंपल्सरी सब्जेक्ट के साथ साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी हों, और एकेडमी के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशंस एट्सेट्रा, उन सभी को भी ड्यू इम्पोर्टेंस जो है मिलनी चाहिए। और ये नहीं है कि एक बार ही हमने करिकुलम बना दिया तो इट कांट बी चेंज, नो, इट शुड नॉट बी स्टैटिक। ये कैसा होना चाहिए, इट शुड बी डायनामिक। तो डायनामिक जो एज जिस तरह से सोशल चेंजेस राइज होती हैं तो हमारा वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, हमारे जो भी अपडेट्स आती हैं दे मस्ट बी रिफ्लेक्ट इन आर करिकुलम। और फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब है कि बच्चों को फ्यूचर लाइफ के लिए प्रिपेयर करना। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस और लर्निंग एक्सपीरियंसेस शुड बी देयर जो बच्चे को फ्यूचर लाइफ के लिए प्रिपेयर कर सके, और उसको क्रिएटिविटी, उसकी इमेजिनेशन फैकल्टी और क्रिएटिविटी को डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो। इस तरह के लर्निंग एक्सपीरियंसेस उसमें होने चाहिए। और करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो हमारी कल्चर हेरिटेज को, हमारी वैल्यू सिस्टम को, हमारे ट्रेडिशंस, कस्टम, एटीट्यूड एट्सेट्रा को प्रिजर्व कर सके, जनरेशन टू जनरेशन जो है वो ट्रांसमिट कर सके, और ये वैल्यूज़ बच्चों में डेवलप कर सके, इनकलकेट कर सकें। और करिकुलम इस तरह का हो कि जिसका एक सब्जेक्ट का दूसरे जो भी डिफरेंट जिस भी सब्जेक्ट को वो बिलोंग कर रहा है उसकी डिफरेंट ब्रांचेस के साथ उसका कोऑर्डिनेशन हो, लिंक हो, कोरिलेटेड हो वो, और उसके साथ साथ वो अपना अदर जो भी सब्जेक्ट मैटर हैं, और ओवरऑल जो भी हमारा उसकी सोशल रेलिवेंस भी होनी चाहिए सोसाइटी के साथ ही, सोसाइटी में जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसकी भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हर एक लेवल में बना रहे, इस तरह का करिकुलम हो। एंड देयर मस्ट बी अ वैरायटी बिकॉज वी नो दैट इन आवर क्लासरूम देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर एक बच्चे का इंटरेस्ट दूसरे बच्चे से वेरी करता है, हर एक की कैपेबिलिटी दूसरे से वेरी करती है, सो दैट वैरायटी और वैराइड लर्निंग एक्सपीरियंसेस शुड बी इंक्लूड, ताकि हर एक बच्चे के नीड्स को कैटर किया जा सके। एंड देन एक्टिविटी सेंटर्डनेस है, तो कंसेप्ट जो है हमारा, जैसे साइंस की हम बात कर रहे हैं तो साइंस एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, ईच एंड एवरी टॉपिक, इट शुड बी ओरिएंटेड अराउंड सर्टन एक्टिविटी so that better learning opportunities can be provided to the learner, or moreover learning by doing, और इन अदर वर्ड की जो भी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं तो उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन वहाँ पे हो सके। तो एक्टिविटी ओरिएंटेड हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए, और मल्टी वेरियस जो एक्टिविटीज़ हैं दे मस्ट बी इंट्रोड्यूस देयर। कम्युनिटी सेंटरनेस, कि कम्युनिटी की जो भी नीड्स हैं, जो उसकी डिमांड्स हैं, जो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी उसका एटीट्यूड है और जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो सके, इस तरह से कम्युनिटी की नीड्स को भी एक ड्यू इम्पोर्टेंस दिया जाना चाहिए। एंड एक्सक्लूसिवली जो भी हमारे क्लासरूम की हम बात करते हैं तो चाइल्ड एक मेन और सेंटर और फोकस पॉइंट होता है चाइल्ड, उसकी हार्मोनियस डेवलपमेंट, और सो दैट ड्यू इम्पोर्टेंस यू शुड बी गिवन टू द what the child's need, interest, abilities and aptitudes। तो ये थे हमारे बहुत सारे डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलर कंस्ट्रक्शन जिसके बारे में आज हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो थैंक यू सो मच।